This is the acceleration of the body on an inclined plane. एक बॉडी अगर किसी inclined plane पे रखा जाए, what will be the acceleration? If the angle of inclination is greater than the angle of repose. Repose क्या होता है? Have you heard the name of angle of repose? How many have the knowledge of angle of repose? Only two. What is angle of repose? What is the angle of repose? इसमें कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन शुड बी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज नाम नहीं सुनी बात, इसका तो कल का वीडियो एकदम नहीं देखी, भी नहीं देखी कभी. क्या था? The minimum angle at which the body just starts sliding down on an inclined plane, that is known as the angle of repose. कल मैंने बताया भी था कि अगर ये इंक्लाइन करो तो अभी सरकेगा नहीं, लेकिन जब इससे थोड़ा सा और अधिक कर, दिस इज द एंगल ऑफ रिपोज. द मिनिमम एंगल एट विच द बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन ऑन एन inclined plane, जैसे ही सरकना शुरू, दिस इज द एंगल ऑफ रिपोज. बात समझ आ रही है ना? This is the angle of, तो इसका मतलब angle of inclination is greater than the angle of repose. Then the body slides down itself. स्वयं slide करना शुरू कर देगी without any external force. Whatever be the friction, अगर inclination से अधिक हो गया repose से, तो body स्वयं slip करेगी. फ्रिक्शन लग यहाँ कितना भी रहे, इसका अपना वेट इतना कैपेबल होगा कि यह बॉडी को स्लाइड डाउन करा देगा. एंड हियर यू सी वेट mg एक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट विल हैव द टू कंपोनेंट mg cos थीटा एंड mg sin थीटा. जब कोई बॉडी मूव करती है तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है. दिस इज द, सिंस बॉडी मूव्स सो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन. Here net force acts on the body downward, net downward force, net downward force. F it is equal to mg sin theta minus fk. Is it clear? And fk is equal to mu mg sin theta, fk is equal to mu k r. And what is r is equal to mg cos theta. So mg sin theta minus mu k mg cos theta. Here this is the f, and f is equal to ma. So ma is equal to, here mg sin theta minus mu k and mg cos theta. M cancelled from both sides, so acceleration A is equal to G take out common sin theta minus mu k cos theta. This is the acceleration of the body on an inclined plane. The body will slide itself when the angle of inclination is greater than the angle of repose. एंगल ऑफ रिपोज से अगर बॉडी का इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन अगर अधिक है तो बॉडी एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से ये जो है बॉडी यहाँ पे स्लाइड करती है. इफ थीटा इज इक्वल टू 0, व्हाट विल हैपन? नो, एक्सेलरेशन विल बी 0. बात समझ आ रही है? नो, हियर दिस विल बी, इट इज 0 माइनस म्यू के, मतलब ए इज इक्वल टू माइनस म्यू के डी. मतलब चल नहीं पाएगी, घर रह जाएगी. अगर ऐसे रह जाए फ्रिक्शन चलने नहीं देगा. बात समझ आ रही है ना? सो दिस इज द एक्सेलरेशन here.
A is equal to G sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। एक क्वेश्चन इस पर करना है इंक्लिनेशन पर कि अगर एक बॉडी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक देख लेना, if a body slides down from a height h on an inclined plane, the length of the inclined plane is L. F be the frictional force. F be the frictional force. Then prove that the velocity v is equal to root 2 upon m gh minus fl. क्वेश्चन है, if a body of mass m slides down on an inclined plane, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, slides down itself on an inclined plane. Suppose this angle is theta, height is h, length of this inclined plane, that is L, frictional force is F. When body reaches the bottom, then velocity v is equal to root 2 upon m gh minus fl. Here, this will be, what will be the velocity? This velocity it is equal to root 2 upon m gh minus fl. Body is placed, done. Yes, sir. Any others also? Try this. Come on and do this. Here we will have to use the law of conservation of energy. The gravitational potential energy at this point will be equal to mgh, and it will be spent against doing work against friction, and will be equal to the kinetic energy at this point. The friction force is equal to F and the displacement is L, as we have taken the x-axis along this direction and the y-axis is along this direction. We will just transpose F on this side. Did you understand? Here this will have the total potential energy. ये पोटेंशियल एनर्जी दो फॉर्म में कन्वर्ट होकर फ्रिक्शन करने से वर्क करेगी, और वर्क करने के बाद यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कुछ वेलोसिटी जनरेट होगी. तो इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एफ एल. तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एफ एल. सो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच एंड दैट इज वी स्क्वायर रूट. और भी क्या कर सकते हो, अगर इंक्लाइंड प्लेन का कंसेप्ट लगाओ तो बॉडी अगर किसी पॉइंट पर है तो एम जी डाउनवर्ड लगता है ना, ये थीटा होता है, इसका कंपोनेंट एम जी साइन थीटा और ये एम जी कॉस थीटा होता है. तो बॉडी अगर नीचे स्लाइड करेगी, फ्रिक्शन फोर्स तो एफ लगता ही है. सो नेट फोर्स ऑन द बॉडी, तो नेट फोर्स कितना लगेगा, दैट इज एम जी साइन थीटा माइनस एफ. यही नेट फोर्स लगेगा. वर्क डन कितना होगा बॉडी का, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. सो एफ इनटू एल, वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पूरा लेंथ. सो एम जी
sin theta minus f into L. Is it clear? And this is equal to here W, it is equal to this work done is converted into kinetic energy. It means this work done, it is converted kinetic energy. This is mgl. Sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. It means into h upon L minus fl. Is it clear to all? L cancelled out. So this is half mv square. It is equal to mgh minus fl. So this v will be equal to v square, it is 2 upon m, and mgh minus fl. So v is equal to this much. Is it clear to all? So इस तरह भी कर सकते हो. इट इज ऑल्सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि जब यह पोटेंशियल एनर्जी होगी तो यह पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन तब जब स्मूथ होता 100%. अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना होता तो होल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, बट ड्यू टू फ्रिक्शन सम वर्क विल बी आल्सो डन. इट इज फोर्स इनटू लेंथ, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इनटू दिस लेंथ. ये भी कुछ काम कुछ खर्च हो जाएगा. सो बट दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये भी होगा. अदरवाइज body placed on this point and it will have the mg sin theta component downward, frictional force upward. net force कितना होगा mg sin theta into f. work done कितना होगा net force into the, यही net force यही तो बॉडी को डिस्प्लेस कराएगा. तो net force mg sin theta minus f into L, और यही वर्क डन विल बी, यही वर्क बॉडी पर जब होगा तेजी से तो बॉडी के अंदर मोशन जनरेट होगा and that will be converted into kinetic energy, that is half mv square is equal to mg sin theta minus f into L. तो हम मल्टीप्लाई करते हैं mgl sin theta is equal to h upon L minus f into L cancel. So this will be the result. Is it clear to all? So on this basis you can do these questions. और फ्रिक्शन भी कुछ और चीजें हमें पढ़नी है कि हाउ द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड, व्हाट आर द प्रोसेस द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड. फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल. ये बताया गया है कि फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल. फ्रिक्शन नेसेसरी भी है, इविल भी है. फ्रिक्शन इज नेसेसरी because without friction we cannot walk, we cannot talk, we cannot eat, we cannot write. हम लिख भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते. फ्रिक्शन ना हो तो बोल भी नहीं सकते. फ्रिक्शन से ही दांत और जीभ के फ्रिक्शन से शब्द क्रिएट होता, नए शब्द बनते. ओल्ड एज में जब सब घिस जाता है तो कायदे से वाणी भी नहीं निकलती. देखते हो ओल्ड एज में जब फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है तो शब्द बन नहीं पाते हैं, बोलते कुछ और हैं, निकल जाता है कुछ और. फ्रिक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, इट इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मतलब विदाउट फ्रिक्शन आवर लाइफ इज नॉट पॉसिबल, बट द मोर फ्रिक्शन इट क्रिएट द मोर पावर. तो फ्रिक्शन इज द नेसेसरी इविल. तो हम यहाँ पर ये भी चीज़ें सीखेंगे कि हाउ द फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज, हाउ द फ्रिक्शन, इसे बढ़ाना भी है घटाना भी है. अगर बहुत स्लिपरी सरफेस है तो हाउ द फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज, कैसे बढ़ा सकते हैं. थ्रोइंग द सैंड, क्लियर, सैंड फेंक सकते हैं. उस पर कंक्रीट कभी कभी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस पर मोटी मोटी गिट्टी चलना ज़्यादा लोग उचित समझते. गिट्टी होती है ना, कंक्रीट डाल देते हैं पूरा, वो बेटर है. लेकिन फ्रिक्शन इतना स्मूथ हो जाता है, चलना कठिन हो जाता है. तो ये जो है फ्रिक्शन को इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं सैंड वगैरह फेंक के. लेकिन फ्रिक्शन को सबसे ज़्यादा घटाने का प्रयास टायर्स में ट्रेडिंग कर दिया जाता है. टायर को हमेशा देखते हो, टायर कभी स्मूथ नहीं रखा जाता, टायर में ट्रेडिंग कर दी जाती है ताकि फ्रिक्शन मेंटेन रहे. चप्पल जब बहुत घिस जाता है, बरसात के समय में लोग गिर जाते हैं,
क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गया तो बैलेंस नहीं बन पाता, मतलब रिएक्शन अर्थ नहीं दे पाती, और रिएक्शन नहीं हो तो हम एक्शन करते हैं और हम तुरंत गिर जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। हाउ द फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज, तो इंक्रीज ऑफ फ्रिक्शन कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं? इंक्रीज द फ्रिक्शन थ्रोइंग द सैंड, और क्या कर सकते हैं? ट्रेडिंग द टायर्स। ये सब मान लो ऑब्जेक्टिव में कुछ भी दिया जाए, व्हाट आर द प्रोसेस, 3-4 ऑब्जेक्टिव बना के दे दिया जाए, कट मार देते हैं टायर में, तो ये चीज़ें हैं। कंक्रीट्स भी यूज कर लेते हैं। ये सब कुछ प्रोसेस हैं जिससे कि हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। हाउ द फ्रिक्शन कैन बी डिक्रीज, फ्रिक्शन को डिक्रीज कैसे करते हैं? डिक्रीज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जनरली नेचर में रहता है, इस नाते रेयर केसेस में ही इसको फ्रिक्शन को कम करने की जरूरत, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने की जरूरत पड़ती है। जितना फ्रिक्शन नेचर ने दिया वो सफिशिएंट होता है। कहीं कहीं कभी कभी बरसात के समय में प्रॉब्लम आ जाती है तो बहुत ज़्यादा वहीं पर कहीं कहीं हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज करना पड़ता है, मैक्सिमम टाइम में डिक्रीज करना पड़ता है, डिक्रीज ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन, बढ़ा हुआ फ्रिक्शन काइनेटिक एनर्जी को बढ़ने नहीं देता, मतलब मोशन में चलने से रोकता है, अनवांटेड हीट पैदा करता है, अननेसेसरी हीट इज, मशीनरी हमारी खराब हो जाती है फ्रिक्शन कर, इसीलिए ग्रीस का यूज करते हैं। वी यूज द ग्रीस, ऑयल एंड सम स्पेसिफिक लुब्रिकेंट्स आर यूज टू डिक्रीज द फ्रिक्शन। और इसमें स्ट्रीम लाइनिंग किया जाता है। स्ट्रीम लाइनिंग, स्ट्रीम लाइनिंग मीन्स, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ स्ट्रीम लाइनिंग? क्या होता? एयर फ्रिक्शन को कम कर सके, बॉडी की डिजाइन इस तरह से करते हैं कि एयर फ्रिक्शन को कम कर सके। एक तरह से मछली के शेप का कुछ बनाते हैं ना, मछली ऐसे ही होती है ना, तो प्लेन हमारा ऐसा बनाते हैं कि वो कट कर सके फ्रिक्शन। मछली को हमेशा पानी में चलना पड़ता है, तो पानी की फ्रिक्शन को रिड्यूस कर, उसकी शेप ही वैसे हो जाती है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर ले। प्लेन, मेट्रो ट्रेन, जहाँ पर भी जहाँ भी बहुत स्पीड की ज़रूरत है वहाँ पर हम क्या करते हैं? स्ट्रीम लाइनिंग करते हैं। स्ट्रीम लाइनिंग, स्ट्रीम लाइनिंग के द्वारा, स्ट्रीम लाइनिंग क्या करता है? रिड्यूसेस द एयर फ्रिक्शन, रिड्यूसेस द एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस द एयर फ्रिक्शन। स्ट्रीम लाइनिंग। और फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस करते हैं? स्ट्रीम लाइनिंग के द्वारा लुब्रिकेंट यूज करते हैं, लुब्रिकेंट्स, और बॉल एंड बियरिंग यूज करते हैं। बॉल एंड बियरिंग, यूज ऑफ बॉल एंड बियरिंग, बॉल बियरिंग को यूज करते हैं। बॉल बियरिंग क्यों यूज करते हैं? वही बता रहा हूँ व्हाई वी यूज। इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन को
रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाता। पहला कंसेप्ट ये है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाता। और एक सिलेंडर में अब एक ऐसे हमारे पास होता है, बीच में एक्सिल होती है, यहाँ पे ऐसे ही बाल यूज करते हैं, जैसे साइकिल वगैरह में भी रहता है बाइक पे हर जगह। और फिर इसको ऐसे करते हैं। ये ध्यान में रखना, यहाँ पे एक्सिल है। ये एक्सिल अगर इस डायरेक्शन में घूमेगी तो ये बॉल बियरिंग इस डायरेक्शन में घूमेगा, ध्यान में रखना। और यह व्हील को इधर ले जाता है, ध्यान रखना। ये जब इधर घूमेगा तो फ्रिक्शन इधर लगाएगा, तो ये एक्सिल अगर पीछे घूमेगी तो व्हील आगे जाती है, ये भी ध्यान रखना। एक्सिल हमारी जो एक्सिल होती है, एक्सिल हमारी पीछे की तरफ जाएगी तो फ्रिक्शन लगाएगी, आगे बढ़ेगा तो ये भी मूव करेगा और ये इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। बॉल बियरिंग से करते क्या हैं, दिस कन्वर्ट्स द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देता और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को जब रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देता। अगर मान लो हम ये रोल ना करते तो क्या करते, एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर लगा देते तो फिर वो केवल स्लाइडिंग फ्रिक्शन रह जाता। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है दैट प्रोड्यूसेस द लार्जर हीट बिकॉज द लार्जर फ्रिक्शन आकर्स। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो हम इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। व्हील अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये जो अगर एक्सिल, इसको एक्सिल कहते हैं, ध्यान रखना। एक्सिल अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो व्हील जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। यही हमारा बॉल बेयरिंग्स का यही काम है कि पहला काम, इट कन्वर्ट्स द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन एंड टू सिलेंडर्स आर कनेक्टेड हियर विद द हेल्प ऑफ द बॉल्स। ये बॉल बीच में होते हैं, इट कन्वर्ट्स द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर केवल ये बॉल ना रहे, एक दूसरे पर स्लाइडिंग होगा, केवल ओनली स्लाइडिंग होगा, जल्दी घिस जाएगा, गर्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम बॉल बेयरिंग यूज कर देते हैं। तो स्लाइडिंग कम जो है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो गर्म नहीं होगा। साइकिल से भी लोग 20-25 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक चले जाते हैं। वो व्हील दैट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन को रिड्यूस, इसलिए गर्म नहीं होता। साइकिल इतना लोग चला देते हैं, ऐसा नहीं साइकिल गर्म हो जाती, लेकिन अगर वो स्लाइडिंग होता तो गर्म करके मेल्ट कर जाता, इतना अगर लगातार चलाते। तो इसीलिए हम बॉल बियरिंग यूज किया। बॉल बियरिंग से बहुत सेफ्टी है कि मशीनरी में जो वियर टियर होता है, हीटिंग इफेक्ट से जो टूट फूट होती है, वियर टियर मीन्स टूट फूट, जो टूट फूट होती है वो नहीं हो पाती। तो इसीलिए बॉल बियरिंग यूज करते हैं। तो प्रोसेस टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, एक डिफरेंट टाइप का हम एंटी फ्रिक्शन एलॉय भी यूज करते हैं। एंटी फ्रिक्शन एलॉय, ये भी ध्यान रखना। स्टील के ऊपर स्टील अगर लगा दिया जाए तो उस पर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, लेकिन स्टील के नीचे स्टील पर सरकने वाला अगर ब्रास रख दिया जाए तो ब्रास एक एलॉय है। क्या किस चीज़ से ब्रास बनता है? जिंक और ZnCu, जिंक और कॉपर से बनता है। तो वो एलॉय के ऊपर अगर स्टील रख दिया जाए तो उसमें फ्रिक्शन कम होता। तो एंटी फ्रिक्शन एलॉय भी यूज करते हैं, ध्यान रखना, एंटी फ्रिक्शन एलॉय। ये प्रोसेस है कि फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस किया जाए। डेली लाइफ में तो फ्रिक्शन नेचर ने वैसे भी दे दिया, सड़क न बनाए तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन पैसा लगा करके सड़क बनाते ना हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं सड़क बनाने में, थोड़ी फ्रिक्शन रिड्यूस कर दें। नहीं तो नेचर ने तो चारों तरफ फ्रिक्शन दे दिया है। फ्रिक्शन की डिमांड, जो पहाड़ पे चढ़ो ना, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, एवरीवेयर देयर इज ए फ्रिक्शन
हमारी ड्यूटी है कि हम फ्रिक्शन को कम करें, लेकिन ये बहुत कम नहीं होना चाहिए। अगर बहुत कम हो गया तो बढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ेगी, ये भी है, इसलिए बढ़ाया भी जाता है। कहीं कहीं बड़ा स्मूथ है सीढ़ी वगैरह तो उसे फ्रिक्शन बनाया जाता है। सीढ़ी अगर बहुत चिकनी हो गई, तमाम लोग गिर जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, तो वहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट किया जाता है। इसीलिए कहा गया फ्रिक्शन इज द नेसेसरी इविल, यह एक आवश्यक बुराई है। जैसे कहा गया साइंस इज ए गुड टीचर बट ए बैड मास्टर, साइंस के बारे में कहा जाता है ना। मतलब ठीक है कि अच्छा ज्ञान तो देता है, लेकिन मास्टर मालिक बन जाए तो अनर्थ कर देता है। जब हमको गौर करने लगे साइंस, हम गौर न करें जब तक साइंस को, मेरे द्वारा साइंस अगर चलती है तब तक नॉलेज के लिए तो बड़ी अच्छी है, लेकिन मास्टर बन जाए, मालिक बन जाए तो सबको खाक कर देती है, तब हमको चलाने लगती है। जब हमें चलाने लगती है तो हमारी लाइफ स्लेव बन जाती है, गुलाम हो जाती है। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए फ्रिक्शन इज द नेसेसरी इविल। नायक भी है, खलनायक भी है। बात समझ आ रही है ना? हाँ, नायक तो है लेकिन नालायक भी। बहुत ज़्यादा हो जाए कभी कोई फ्रिक्शन से लोग जीवन तोड़ देते हैं, माने जीवन जीने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। लाइफ में बहुत फ्रिक्शन हो जाए, और अगर कोई ना पढ़े कायदे से, पढ़ना भी तो फ्रिक्शन ही है। अभी 10th से आए हो और 12th का 11th का सिलेबस अभी देख रहे होगे, तो खोपड़ी में फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन चल रहा होगा। मैंने खोपड़ी गर्म हो रही होगी ना, हाँ, इतना जनरेट हो रहा है। और उसका एक मात्र उपाय है, उसका सिर्फ एक सलूशन है दिमाग के फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, कि एक तो समय देना है, दूसरा उसको समझना। समझ लोगे तो वही ग्रीसिंग, वही ग्रीस का काम करेगा और फिर स्मूथ हो जाएगा, फिर एंजॉय करो। लेकिन अभी फ्रिक्शन है, वो भी फ्रिक्शन है। तो इस नाते उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का एकमात्र उपाय है कि अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करो, चाहे जैसे भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करो। जो फ्रिक्शन अपने फ्रेंड से करो, टीचर से, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उस पर लगे। आजकल तो नेट में भी बहुत ज़्यादा सलूशन है, लेकिन सलूशन लेने की ज़रूरत है। लेकिन सलूशन ढूंढने में दिमाग में पॉल्यूशन फैल जाता है आजकल। जब नेट खोलते हैं तो नेट की दुनिया में बह जाते हैं और अपनी लाइफ के लिए इतना फ्रिक्शन क्रिएट कर लेते हैं, उसी फ्रिक्शन में डूब जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस नाते सलूशन ढूंढो, पॉल्यूशन नहीं। ये सब प्रॉब्लम्स हैं। दिस इज द फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन में बस 2 टॉपिक और पढ़ने हैं। एक तो इंक्लाइंड मीन्स बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ना, कि वाई द रोड्स आर बैंक। एक जगह स्लोप बना दिया जाता है, रोड को उठा देते हैं। कभी कभी देखते हो ना, जहाँ टर्निंग होती है रोड को उठा देते हैं। रोड को उठाना भी जगह जगह जरूरी होता है, क्योंकि ट्रक को मोड़ने में मदद करता है। अगर न उठाएं ना तो कई ट्रक वाले उठ जाएं, ऐसा रहता है। वो बड़ा सपोर्ट करता है, हेवी लोडेड ट्रक को मोड़ने में मदद करता है।